Yes, our new chapter of grammar is modals. What is modals? The auxiliary verbs are helping verbs. Auxiliary verbs are called modal. They are also called helping verbs. They are used with the main verbs to make a sentence. They express the mood or attitude of the speaker. Modals do not stand alone. They are used to convey ideas of permission, possibility, ability, suggestion, advice, necessity, obligation, prohibition, offer, etc. Formation: subject plus modal plus main verb first form plus remaining part of the sentence. What are the modals? Can, could, shall, should, may, might, will, would, and must. These modals are commonly used in our daily life. Then they express the mood or attitude of the speaker. वो हमारी किसका मूड एंड एटीट्यूड, हमारे मूड और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं. किससे एक्सप्रेस करते हैं? बाय द वर्ड. विच वर्ड? कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, विल, वुड एंड मस्ट. दे आर यूज्ड टू कन्वे आइडियाज. दे आर यूज्ड टू कन्वे आइडियाज ऑफ परमिशन, पॉसिबिलिटी. ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं उन सब के लिए हमें इनमें से कोई ना कोई, वी हैव टू यूज one of the model from these models. Now what is the formation? How they stand? They stand with, they don't stand alone. वो कभी भी अकेले यूज नहीं होते. They stand with subject, then after model, then after main verb first form. They always used with verbs first form. इसके अलावा वो कभी भी यूज नहीं होते. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडल. नाउ वी हैव टू लर्न वन बाय वन दिस मॉडल्स. Use of can and could. Can and could. Can is a present form and could is past tense of can. Can is present tense and could is past tense of can. Can is used to express ability, or inability. What is ability and what is inability? Ability means हम जो कर सकते हैं and inability means we can't do. One example: he can lift the box. Second, he can jump over the wall. Third, she cannot solve the puzzle. He can lift the box. It means he is able to lift the box. It means उसके अंदर एबिलिटी है बॉक्स को लिफ्ट करने की. He can jump over the wall. He can कूद सकता है. It means he has ability. And third one, she cannot solve the puzzle. It cannot
नहीं कर सकता, इट मीन्स इनएबिलिटी। तो ये हो गया एबिलिटी, ये भी एबिलिटी हो गया, एंड दिस इज इनएबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज कैन इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। कैन इज ऑल्सो used to express permission. Can I sit here? Second one is you can take this pen. What is the difference between these two sentences? In a first sentence, he is asking permission for sitting, and in second sentence, परमिशन इज गिवन टू हिम टू टेक दिस पेन। दूसरे में उसे परमिशन दी जा रही है कि तुम ये पेन ले सकते हो, और फर्स्ट में वो परमिशन मांग रहा है। दिस इज द डिफरेंस। तो ये क्या हो गया सेंटेंस? एक्सप्रेस द परमिशन। राइट डाउन दिस। Then could. Could is past tense of can. Could is used to express ability or inability in past, in the past. यूजेस दोनों का सेम है, एबिलिटी और इनएबिलिटी, बट वो प्रेजेंट में था और ये क्या है? पास्ट में है। कैसे? He could speak English when he was 3 years old. He could speak English when he was 3 years old. जब वो 3 साल का था तो वह इंग्लिश बोल सकता था। इट मीन्स दिस इज एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी है? पॉजिटिव एबिलिटी है। जब कोई नेगेटिव एबिलिटी आएगी तो कुड नॉट वहां पर क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम इन एबिलिटी का? ही couldn't win a prize. He couldn't win the prize. Right? Next, could is also used to seek permission. Could is also used to seek permission or make a request, or make a request. Could is also used to seek permission or make a request. कैसे? Could I use your scooter? Could I use your scooter? He is asking permission.
and in another sentence could we play football here. सेकेंड में रिक्वेस्ट की गई है कुड वी प्ले फुटबॉल हियर, और फर्स्ट में परमिशन मांगी गई है कुड आई यूज योर स्कूटर. तो इस तरह से कुड का यूज जो है वो परमिशन और मेक रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, एंड पास्ट टेंस की पास्ट के एबिलिटी को शो करने के लिए, इनएबिलिटी को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए भी कुड का यूज किया जाता है. राइट डाउन दिस ऑल्सो. Second is may, might. May and might. Might is used to express possibility. Might, sorry, may. May is used to express possibility. How? It is cloudy. It is cloudy. It may rain. Possibility है because weather कैसा हो रहा है? Cloudy. He may come today. He may come today. उसके आने की पॉसिबिलिटी है. If he work hard, he may pass. If he work hard, he may pass. अगर वो मेहनत करे तो वो क्या हो सकता है? पास हो सकता है. इट मीन्स देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेट सक्सेस. तो इस तरह से मे का यूज जो है वो किसके लिए होता है? पॉसिबिलिटी के लिए. अब मे का यूज हम देखेंगे परमिशन के लिए. परमिशन, कौन सी परमिशन हम हमारी स्कूल लाइफ के अंदर डेली टीचर से मांगते हैं? May I come in? Sir, madam, what you are say? Right? Second, you may go home. Permission granted by parents, teacher, whatever. कि तुम्हें घर जाने की परमिशन दी जाती है. मे आई कम इन सर, मैं क्लास में आ सकता हूँ, वॉट एवर. ठीक है. तो ये जो यूजेस हैं, ये यूजेस जो हैं हर एक वर्ड्स के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है कि कभी कभी दोनों वर्ड्स आंसर दोनों आ सकते हों वहां पर. तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी आएगी कि जहां पर कैन भी राइट है और दूसरा वर्ड भी राइट है. तो हमें जब कभी भी कोई भी सेंटेंस हो तो हमें पहले उसे दोनों तरीके से यूज करके देखना है, फिर जो बेस्ट लगे उसको हमें लिखना है. राइट डाउन दिस ऑल्सो. May is mostly used to, may is mostly used to seek permission from our elders,
seniors, teachers, officer. With friends and equals. May is mostly used to seek permission from our elders, हमारे से बड़े के लिए, टीचर्स, ऑफिसर, सीनियर्स, फ्रेंड्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, एंड इक्वल्स जो हमारी एज के हैं. जो हमारी एज से छोटे हैं उनके लिए हमें मे नहीं यूज करना है, उनके लिए हमें कैन यूज कर सकते. तो ये एक मे का जो यूज है वो इस तरह से है. मे इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस होप, प्रेयर, विश. मे इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस होप, प्रेयर, विश. जब हम अपनी किसी को विश करते हैं, किसी से होप करके रखते हैं, जब हम भगवान से प्रेयर करते हैं, तो हम कौन से मॉडल को यूज करते हैं? मोस्टली हम मे को यूज करते हैं. कैसे? मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं, मे ही पास द एग्जामिनेशन, मे ही पास द एग्जामिनेशन. मे ही पास द एग्जामिनेशन मीन्स यहाँ पे हमारी प्रेयर हो रही है कि भगवान उसे पास कर दे. तो इस तरह से किसका यूज है? मे का यूज है. राइट डाउन दिस ऑल्सो. Our another word is might. Might is always used for remote possibility, most probably for remote possibility. What is remote possibility? यानी नहीं के बराबर की संभावना के लिए, एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज होगा. एक तो might, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होगा. सेकंड, कैसी कैसी पॉसिबिलिटी देखो. आई माइट गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक. आई माइट गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक. ये दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी, मैं जा सकता हूं. अब जैसे मैंने बोला था रिमोट पॉसिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड रेयर पॉसिबिलिटी. तो माइट इज यूज्ड व्हेन द चांसेस ऑफ समथिंग हैपनिंग आर लेस और रेयर. लेस और रेयर कैसे? एग्जाम्पल हम देखेंगे. He hasn't worked at all, but he might pass. He hasn't worked at all, but he might pass. Right? Then might is also used as past tense of may in the indirect speech. जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में हमने पढ़ा कि मे का जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा. तो यहाँ पर भी हमें वही यूज है कि जब हम डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो मे किस में चेंज हो जाता है? माइट में. तो इस तरह से मे एंड माइट के यूजेस यहाँ पे हमने लिखे हैं. अब नेक्स्ट हमें देखने हैं माइट मे के बाद विल और शैल.